Hello friends, like, share and subscribe my channel. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम वन बाय वन मेन पॉइंट्स आज कंसीडर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज आवर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट is the flow of net amount of charge. The electric current is flow of net amount of charge is constitute in electric circuits. Due to the effect of produce the electric करंट। ओके, मोस्ट ऑफ अमाउंट फ्लो ऑफ चार्ज होने की वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन रटने से पहले हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I is a electric current, defined as electric current. Q is a net amount of charge. T is a time. Electric current is defined as the net amount of charge is flowing through the conductor across the any time of t. That is called इलेक्ट्रिक करंट। फिर से रिपीट करूंगा मैं। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर अक्रॉस इज एनी ऑफ टाइम। इलेक्ट्रिक करंट I is equal to Q upon T. Q is कूलम, T is टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होगा Q बाई T एंड ऐसा यूनिट होगा कूलम पर सेकंड। ओके, कूलम की साइन होगी C एंड टाइम की साइन होगी S। सेकंड यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट इन सेकंड यूनिट इज SI यूनिट। SI मीन्स, व्हाट इज SI? SI मीन्स सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल is the full form of SI. Unit is ampere. Ampere is denoted by a symbol of A. आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? द फॉर्मूला I is equal to Q by T. Q is a net amount of charges is flowing through the conductor crosses in time of t. Ratio is equal to I. I is called electric current. Electric current का SI यूनिट होगा एम्पियर। एम्पियर is symbol of A. Second unit of electric current is equal to Q upon T. Q means coulomb, T means time, so coulomb per second. Small current means is a use of many example. Small current is a milliampere and microampere. Milliampere means 10 raised to minus 3 ampere and microampere is equal to 10 raised to minus 6 ampere. Second topic, 1 एम्पियर की डेफिनेशन अगर पूछी जाए, 1 एम्पियर मीन्स व्हाट? जब 1 एम्पियर कब मिलता है? द नेट ऑफ चार्ज इज 1 कूलम होगा। नेट ऑफ चार्ज क्या होगा? 1 कूलम होगा एंड टाइम इन 1 सेकंड में होगा। नेट ऑफ चार्ज आर फ्लोइंग टू द 1 कूलम इन द कंडक्टर इन टाइम ऑफ 1 सेकंड, सो वी कैन गेट 1 एम्पियर। ओके, टाइम इज t is 1 second, coulomb is 1 coulomb. The coulomb of charge, any cross section of the conductor perpendicular the direction, current in 1 second, so we get a 1 ampere. Okay, आज ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूला हो गए, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हो गया, इलेक्ट्रिक करंट के 2 स्मॉल करंट के यूनिट हो गए, इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है वो हमने समझ लिया, इलेक्ट्रिक करंट का 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमने रट ली। सेकंड टॉपिक हमारा होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ किसने दिया था? ओके, 1828 में जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन, ओके, जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम्स ने, जर्मन साइंटिस्ट फिजिस्ट
ओम्स ने first person, who is the first person to give the mathematical relationship between I is, we know that I is current, V is voltage, potential difference. So George Simon Ohms is give to the mathematical representation of I and V. So the state is under the definite condition, the temperature is constant. So the current I is flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference. Okay, the state is what? Ohm's law state that the current is I is directly proportional to the potential difference. So I is proportional V. So V upon I proportional is equal to constant. Okay, a proportional is constant. The ratio of V upon I, the constant is given R. What is R? R is the resistance of conductor. So V upon I is equal to IR, V upon I is equal to R, V is equal to IR, and then third formula, I is equal to V upon R, V is equal to IR, V upon I is equal to R. These are three formula in use of example. Okay, I is a electric current, V is a voltage यानी potential difference, R is a resistance of conductor. Now हम यूनिट की बात करेंगे. सो ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? वोल्ट चेज यानी वोल्ट, आइज इज एम्पियर. सो वोल्ट अपॉन एम्पियर. ओके, इट इज डिनोटेड बाय रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस का यूनिट हुआ ओम. क्यों ओम हुआ? क्योंकि ओम्स लॉ ने स्टेटिफाई किया था. सिंबल होगा ओहम. ओके, सिंबल होगा, ऐसा सिंबल होगा हमारा. तो आप समझ गए होंगे ओम्स लॉ. किसने ओम्स लॉ दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने. कब दिया था? 1828 में. कौन था वो? जर्मन फिजिस्ट. समझ गए आप? ओके, क्या दिया था? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. किसके बारे में? आई एंड वी के बारे में. आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है. वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है. ओके, सो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी. प्रोपोर्शनल अगर सामने चला गया, आई नीचे गया, वी अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट. वी अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट इज रेशियो इज आर. आर इज व्हाट? रेजिस्टेंस. आर का ऐसा यूनिट होगा ओम, एंड ओम का सिंबल होगा दिस टाइप ऑफ. एंड सेकंड यूनिट क्या होगा? वोल्ट पर एम्पियर. फिजिक्स के हर एक टॉपिक के अंदर एक एक सिंबल के एक एक टॉपिक के 3-3 या 2-2 ऐसा यूनिट होते हैं. आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ. हमारा आज 2 टॉपिक हुआ. चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट. आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. ओम्स लॉ, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. ओके, सो लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है. सो आप ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी. ओके, सो रेजिस्टिविटी क्या है वो हमें पता नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेजिस्टिविटी हम कैसे फाइंड करेंगे. हमें पता है आर इज अ रेजिस्टेंस. आर इज व्हाट? आर इज रेजिस्टेंस. ओके, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है वो हमें पहले समझना चाहिए. ओके, सो ड्यू टू द कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एल. ओके, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. सेकंड, आर किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया. लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है?
क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली। एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली। सो हम दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? R इज प्रोपोर्शनल टू V एंड R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। सो दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं हम R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, यानी R डायरेक्टली L हो गया, R इनवर्सली A हो गया। सो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जब भी हम निकालेंगे तो कोई भी कांस्टेंट आएगा। सो R इज इक्वल टू रो L/A। रो मीन्स resistivity. Okay, rho means what? Resistivity. L means length of conductor. A means cross section area of conductor. तो हमें यहाँ R का यूनिट पता है। R का यूनिट है ओहम। ओके, L का यूनिट क्या होगा फ्रेंड्स? L का यूनिट होगा मीटर। L इज डिफाइन एज मीटर। ए का एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी मीटर स्क्वायर। सो हमें रो का फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे? रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। सो R इज ओहम, A मीन्स मीटर स्क्वायर, L मीन्स मीटर कैंसल। सो हमें ऊपर क्या बचा? ओहम इंटू मीटर। सो रेजिस्टिविटी का यूनिट फाइंड हो गया ओहम इंटू मीटर। ओके, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पार्ट 1 फिनिश हो गया। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हमें कैसे फाइंड की फ्रेंड्स? R मीन्स व्हाट? रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। सो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया रो, यानी रेजिस्टिविटी। ओके, R का हमें यूनिट पता था ओहम, L का पता है, A का पता है, तो हमने फाइंड कर लिया रो का। आज समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूं? ये हुआ पार्ट 1। नाउ कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। कंडक्टिविटी फाइंड करनी है ड्यू टू द चार्ज डेंसिटी। तो हमें पार्ट 2 में जाना होगा। अब पार्ट 2 कहां से स्टार्ट करेंगे? पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे ओहम्स लॉ से। हमें ओहम्स लॉ पता है। व्हाट इज ओहम्स लॉ? V/I is equal to R. What is Ohm's law? V/I is equal to R. So V is equal to IR हम लिख सकते हैं। ओके, यस और नो? ओके, V is equal to IR. Now हमें R का पार्ट 1 में एक फॉर्मूला मिल गया था। अब देख सकते हो इधर। सो V is equal to I, R की जगह हम क्या लग सकते हैं? रो L/A। रो L/A। नाउ मैं एक टॉपिक आपको अभी बताना भूल गया हूं। चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी यानी क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन चार्ज डेंसिटी की जब भी बात करेंगे, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू J इज इक्वल टू I/A। याद रखना, J इज इक्वल टू I/A। सो I इज डायरेक्शनल, सो J इज also directional, यानी वेक्टर क्वांटिटी। I is a vector quantity, so J is also a vector quantity. So यहाँ पे हमें कुछ I/A जैसा दिख रहा है फॉर्मूला में। स्टेप बाय स्टेप जाना फ्रेंड्स। I/A यानी हमने क्या लिखा? J यानी व्हाट? चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी का भी एक बार में पढ़ ले। I यानी एम्पियर। ओके, A यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया। ओके, सो V इज इक्वल टू क्या मिला हमें? I/A यानी J रो L। ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको? अब एक टॉपिक, सेकंड टॉपिक है V इज इक्वल टू EL। अब EL कहां से आया मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। चलो, E यानी व्हाट? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। ओके, L यानी लेंथ। हमें पता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट? वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, यानी लेंथ। सो E इज इक्वल टू V/L हमें पता है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। सो वी कैन गेट V इज इक्वल टू व्हाट? EL। सो V की जगह हम क्या रखेंगे? EL इज इक्वल टू J रो। ओके, सो L कैंसल। सो क्या बचा? ओनली E इज इक्वल टू J रो। क्या बचा? E इज इक्वल टू J रो। व्हाट? E इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। J इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी,
रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। हमें क्या लाना था फ्रेंड्स, हमें लाना था कंडक्टिविटी। हम आगे अब और बढ़ेंगे। ओके, जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमें यहाँ भी बात करी थी। सो जे अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सो ई वी कैन गिव दैट ई इज इक्वल टू जे रो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेक्टर। ओके, वेक्टर को डिफाइन करता है एरो से। सो ई इज इक्वल टू जे रो। सो नाउ रो यानी रेजिस्टिविटी, लेकिन रेजिस्टिविटी का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा। सिग्मा यानी कंडक्टिविटी। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इट इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी। सो यहां हम लिख सकते हैं 1 अपन रो। रो अगर इधर नीचे ले आए, ओके 1 अपन इधर नीचे ले आए, रो is equal to j. So 1 upon rho means what? Sigma. 1 upon rho means what? Sigma. So sigma E is equal to j. So this is the formula of second equation. So conductivity हमने बात करी थी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हमने फाइंड कर ली, R इज इक्वल टू रो एल अपन है। उसका फॉर्मूला यूज करने के बाद ओम्स लॉ में जाएंगे, ओम्स लॉ के अंदर उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। सो नाउ थर्ड चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे, V इज इक्वल टू ई एल रखेंगे। नाउ देन वी कैन गेट सिग्मा इज इक्वल टू जे। यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें 2 to 3 टाइम्स जब लिखने के बाद ही हमें याद रह सकता है। तो आज का इतना ही टॉपिक रहेगा। आज का हमारा टॉपिक रहा इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ एंड द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। सो आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो मेरा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।